Hello everyone, welcome back once again in our next session for one shot for all the students who are preparing for Jipmat and Ipmat examinations. Now my dear friends, these examinations are round the corner. अब ज़्यादा time बचा नहीं है, तो excitement, डर, nervousness, ये सारी की सारी feelings एक साथ आ रही होंगी आप लोगों के सामने. So friends, a very good evening to all of you. Once again, welcome back to your favorite YouTube channel Ipmat Wallah. And I am one of the mentors here at Ipmat Wallah, and I take logical reasoning and data interpretation. So people, jaldi se bata do. Arey namaste yaar, Rishav and Bhumika and Vishal, Shashank, Kauthalya, Ikash, everyone, a very good evening to all of you. तो सबसे पहले मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो if I am clearly visible and audible. And Vanshika, I have already seen your questions, so I'll start by suggesting you like whatever you are asking for. Vanshika, class start होने से पहले, आज का session start होने से पहले, I have already read your YouTube comment and definitely I'll do that, यार. Definitely I'll recommend you a book to prepare for logical reasoning. ठीक है? So topic wise preparation, all right Vanshika. So Vanshika, the thing is you will find a lot of books in the market. बहुत सारी books मिलेंगी market में, ठीक है, with the name of different authors. So understand one thing, that I cannot recommend you any particular author, but I will suggest that go to any like a bookstore or you can search it on Amazon. Amazon पे भी आपको बहुत सारी books मिल जाएंगी. Just look for any of the books, like if you're talking about logical reasoning only, right? So if you're talking about logical reasoning only, so you will get Arun Sharma, you will get R.S. Agarwal, you will get Arihant Publication. बहुत सारी books है market में, right? Now any book, like if you are preparing for Jipmat and Ipmat examination, so any book which has in its title for the preparation of Jipmat and Ipmat, you can purchase that book. Okay, believe me, every book is similar, बहुत ज़्यादा difference नहीं होता. All you need for these topics is the practice of questions. तो इनके जो concepts है ना, वो इतने ज़्यादा difficult नहीं होते. Okay, so once you will understand the basic concepts through the lectures that you are attending here on YouTube, right? और कोई भी book purchase करोगे, उसके अंदर थोड़ा सा आपको उस topic का introduction मिलेगा, right? So after doing that, things will not be enough until and unless you will practice questions. ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने से ज्यादा टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाओ. क्वेश्चंस के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, राइट, डेप्थ मिलेगी टॉपिक में, एंड यू विल come across different type of questions and you will be able to understand things in a much better way. ठीक है, so कोई भी book purchase करो, आपकी मर्जी है, right, but it should have in its title for the preparation of Ipmat and Jipmat, and that will be fine. All right, Vanshika, great. Now sir, but in market not a single book contains title. अरे नहीं, ऐसा नहीं है विशाल, आप Amazon पे भी सर्च करोगे, so you will get some books. Ipmat preparation book 2025. So I can see comprehensive guide for Ipmat exam. I am Indore, Jammu, Rohtak. सबसे पहले सर्च में ही मेरे पास ये आया है, ठीक है. So ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, इतने पुराने एग्जाम्स हैं, इतने बड़े एग्जामिनेशंस हैं, सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि अभी तक कोई बुक नहीं हो इन पे. ओके, एंड सिंपल सी बात है एक और, कि लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, all the topics that you will find in these examinations, they are also tested in other examinations. ठीक है, right? So go ahead and then you can purchase a book. Okay, so I believe to myself, but then also I'm not sure that this year I can't be able to crack Ipmat, so I think attempt this time for experience. And Rishabh, थोड़ा सा अपनी mentality change करो, psychology change करो, ठीक है. So obviously you are saying that you are going to write the examinations this year. Now before the examination, take every exam seriously. Do not think that you will be appearing for these examinations in the next year, right? So do or die वाली situation आनी चाहिए इस साल, right? अगर इस साल admissions हो जाते हैं, you will save one entire year in your life. Okay, so give your 100%, more than your 100% this year. ठीक है, अगर नहीं होता तो बाद में देखेंगे करना क्या है.
बट अभी से ही सोच के मत बैठ कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है एंड दिस विल बी एन एक्सपेरिमेंट. डोंट डू दैट. ओके, ग्रेट. सो फ्रेंड्स, एनफ ऑफ लेक्चरबाजी, ठीक है, एनफ ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन. राइट नाउ लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड डिस्कस ब्लड रिलेशंस. सो लास्ट जो मैंने क्लास लिया था आपका वन शॉट का, मैंने आप सबसे पूछा था like which topic you feel that you are a little weaker at. Okay, आप सबने like most of the students picked the name of blood relations and data sufficiency. ओके, सो ब्लड रिलेशंस मैंने प्लान कर लिया, आज कुछ और टॉपिक था बट उसको चेंज करके लाइक आफ्टर लुकिंग एट द एडवाइस दैट यू हैव गिवन मी, आफ्टर लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टोल्ड मी, सो आई हैव picked up blood relations for this week, and then in the upcoming weeks again I'll ask you in this session कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, बट अभी नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं पूछूंगा तब आप बताना. ठीक है, सो डेटा सफिशिएंसी आप लोगों ने मेंशन कर दिया था. आई विल बी कंडक्टिंग दैट बिफोर जिपमैट एग्जामिनेशन डेफिनेटली, एंड देयर विल बी लाइक स्कोप ऑफ वन मोर टॉपिक दैट विल डिस्कस. ठीक है, कौन सा टॉपिक आप लोगों का वीक है, राइट? ओके, now Deepika, you are saying that only DI comes in Indore. No, that's not correct. Last 5 या 6 साल के पेपर्स उठा के देखो, there are some occasions in which you have got one set of 5 questions of data interpretation. There are some occasions on which you have got one set of 5 questions from logical reasoning as well. ठीक है, right? So last 2-3 years से data interpretation आ रहा है, but ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इस साल भी DI आएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर्स में सिर्फ डीआई ही आया है. लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा गया है. आईपी मैट इंदौर के एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो सेक्शन होता है उसमें 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है. ये डीआई में भी हो सकता है, ये लॉजिकल रीजनिंग का भी हो सकता है. ठीक है, राइट? सो दिस इज द ट्रूथ अबाउट दैट, राइट? चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, ब्लड रिलेशंस. सो the format of this session, the agenda of this session will be to first of all focus on to talk about a little basics on blood relations. I'm pretty sure that सब लोगों ने basics तो पढ़ रखे होंगे. ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम blood relations के basics पे spend नहीं करेंगे. We'll be spending time in doing the questions on blood relations, especially those questions which have come in the last 4 or 5 years of different examinations that will be appearing for. तो आज हम PYQs पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, तो आपको पता लग जाएगा यार कि ब्लड रिलेशंस कितना टफ है, कितना इजी है. विल सी. तो हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने पिक किए हैं, राइट? ठीक है, सो दिस विल बी द एजेंडा. विल बी लुकिंग एट फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक्स ऑफ ब्लड रिलेशंस. ठीक है ना? सो ब्लड रिलेशंस के बेसिक्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, 5-10 मिनट, एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम विल बी solving different types of questions on blood relations which have appeared in the previous year papers of IPMAT, JIPMAT and so on so forth, right? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. some of the basics of blood relations, things you must know, things you must take care, things you must follow while solving the questions of blood relations. ठीक है, now one thing, the first thing that I always tell students definitely you must take care about is the gender. Now gender is one thing which is very important in the questions of blood relations. Now first thing is we consider only 2 genders while solving these questions, male or female. We don't consider the third gender, right? This is one very important thing. हम 2 ही gender consider करेंगे, male है या female है. तो एक person male हो सकता है या female हो सकता है, right? ठीक है. So while I solve the questions, I have made certain symbols for myself. तो questions को solve करते वक्त अगर जो हम diagram बनाते हैं, step wise diagram बनाते हैं, flow chart बनाते हैं, right? आप इसको कुछ भी बोल दो, family tree बोल दो, diagram बोल दो, तो generally लोग family tree समझते हैं. तो जब भी आप family tree draw करते हैं किसी भी question के लिए, तो वहां पे मेल और फीमेल पता होना बहुत जरूरी होता है. तो what I do is, whenever I have any person whose gender is male, let's say A is male, I will put male in a box. So this is male for me, and let's say B is female, so this is female for me. I'm sorry.
ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने अपने सिंबल्स बनाए हुए हैं, आप अपने सिंबल्स बना सकते हो, बट मेक श्योर कि सिंबल बना लो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कंफ्यूजन ना हो व्हेन इट कम्स टू लाइक वर्किंग ऑन द जेंडर ऑफ एनी पर्सन, राइट। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, मेल फीमेल सिंबल्स बना लिए मैंने, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज you should not assume the gender of a person on the basis of the name of that person. नेम के बेसिस पे जेंडर अज्यूम नहीं करना है। सो क्वेश्चन में कुछ भी नाम यूज हुआ है, लेट्स से सीता, गीता, राम, श्याम, जॉन, बिपाशा, कुछ भी नाम यूज हुआ है, ठीक है, राइट। जब तक आपको इसका जेंडर क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है तब तक आपको अज्यूम नहीं करना, ओके। नेम डज नॉट स्पेसिफाइज द जेंडर ऑफ अ पर्सन। आप बोलोगे यार सीता तो कॉमनली नेम, बहुत कॉमन नेम है एंड सीता तो फीमेल का ही नाम होता है। नहीं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस में नेम डज नॉट स्पेसिफाइज द जेंडर ऑफ अ पर्सन। अगर आप कर रहे हो ये तो आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, राइट। सो द कीवर्ड्स लाइक ही or she, him or her, brother, sister, father, mother, जब तक ऐसा कोई कीवर्ड एसोसिएटेड नहीं है नेम के साथ तब तक आप जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते। न्यूट्रल रखेंगे, ओपन रखेंगे, राइट, ठीक है। अब मयंक जी ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, सर आई एम अ 27 aspirant, I wanted to join a batch of yours but there isn't any, so Vineet sir advised me to join 2026 batch. Okay, Mayank, 2027 aspirant, you have complete 2 years, right? So you have two possibilities. One possibility that Vineet sir has advised you, ठीक है। Second possibility हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम एजेंडा जो है उसको डेविएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइज मैं अपने सेशंस में ना जो जनरल क्वेरीज हैं, इफ यू हैव एनी जनरल क्वेरीज होल्ड करो उसको सेशन के एंड तक। सेशन में 5 या 10 मिनट हम स्पेंड कर सकते हैं जनरल क्वेरीज में, बट अगर आप बीच बीच में जनरल क्वेरीज पूछते रहोगे ना तो सेशन का टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। मैं तो अगले 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक बक कर सकता हूं आप लोगों के सामने, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रखते हैं सेशन को, पहले एजेंडा कवर अप करते हैं एंड फिर जनरल क्वेरीज। एजेंडा आधे घंटे में कवर हो जाएगा तो जनरल क्वेरीज के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो आई वाज सेइंग दैट नेम डज नॉट स्पेसिफाइज द जेंडर ऑफ अ पर्सन, ये गलती नहीं करनी है, डन। सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर अबाउट। Second thing is we should be drawing a family tree properly. फैमिली ट्री बनाना है, फैमिली ट्री इस तरीके से बनाना है, ट्री का मतलब क्या है, कोई चीज जो ग्रो हो रही होती है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, फ्लो चार्ट टाइप, ठीक है। तो हमें फैमिली ट्री इस तरीके से बनाना है सच दैट जो जनरेशंस हैं अलग अलग क्लियरली पता चले, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन। सो इफ ए इज एनी पर्सन, कोई भी ए है पर्सन, सेम जनरेशन में उसके जो भी रिलेशंस आएंगे, सेम जनरेशन में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, कैन यू राइट ऑल द रिलेशंस which will be in the same generation as that of A। मैं हूं एक पर्सन, मेरी जनरेशन में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, come on please tell me the names of those persons, those relations, go ahead। Absolutely, brother, sister, I can say husband or wife depending upon the gender of A। ओके, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, और क्या रिलेशन हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं ना, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। सो BIL मीन्स ब्रदर इन लॉ, SIL मीन्स सिस्टर इन लॉ, राइट। मेटर्नल और पेटर्नल सिस्टर ब्रदर, सो ऋषभ हम उनको कजन्स बोल दे, राइट। सो मेरी आंट के जो भी बच्चे होंगे, राइट, my mother's sister's son or daughter, my father's sister's or brother's son or daughter, right, तो उनको मैं cousin बोल सकता हूं, so cousin हो सकते हैं, right। और क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर, cousin, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, गौरी
ग्रैंड पेरेंट्स मेरी सेम जनरेशन में थोड़ी ना होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स मेरे मेरे फादर के फादर, मेरी मदर के फादर, दे आर नॉट इन द सेम जनरेशन बच्चे, ठीक है। सो ये वाले जो रिलेशंस हैं, ए का ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड या वाइफ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कजन, ऑल ऑफ देम विल बी इन द सेम जनरेशन। एंड अगर इनको फैमिली ट्री में ड्रॉ कर रहे हो तो इनको सेम लेवल पे लिखो, ताकि रिलेशनशिप लास्ट में फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सिमिलरली द रिलेशंस विच आर वन जनरेशन अबव, मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। सो आई एम राइटिंग ऑल दोज रिलेशंस, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सो फादर, मदर, अंकल एंड आंट, राइट। जनरली ये 4 रिलेशंस हैं जो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में हो सकते हैं। 2 और रिलेशन है जो मेरी वाइफ के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ मेरे को मिलेंगे, राइट। सो अगर ए का जेंडर मेल है तो उसकी वाइफ के हिसाब से रिलेशंस आएंगे, इन लॉज। अगर ए फीमेल है तो उसके हस्बैंड की तरफ से उसको रिलेशंस मिलेंगे। तो नेक्स्ट इज इन लॉज, सो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, राइट। So A's father or mother, uncle or aunt, then similarly father-in-law and mother-in-law, right? So all these relations will be one generation above the generation of A. Now moving on to another higher generation, right? So another higher generation, it will be grandparents, right? Grandparents. So relations जो भी मुझे मेरे father की वजह से मिलते हैं, what do we call those relations as? In general एक word use होता है, what do we call those relations as? जो मेरे father की तरफ से आते हैं मेरे पास। tell me the word that we use. Come on. So the word is paternal relations. So father's father, father's mother. So these are paternal grandfather, paternal grandmother. ठीक है। सिमिलरली मदर की साइड से जो रिलेशंस आते हैं, दे आर कॉल्ड मैटरनल रिलेशंस। ओके, सो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, राइट, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन रिलेशंस। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर की साइड से हो सकते हैं, मदर की साइड से हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर ग्रैंड पेरेंट्स विच विल बी 2 जनरेशंस अबव मी, मेरे से 2 जनरेशन ऊपर है, राइट। Generally in questions you will find up till this generation only, इसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पे नहीं जाते क्वेश्चंस में, ठीक है, अच्छा है, राइट। अब आते हैं नीचे की जनरेशंस, ए से नीचे। सो ए के नीचे कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं, क्विकली राइट द नेम्स। ए से नीचे कौन कौन से जनरेशन, कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं। लवली, लवली, गौरी, आयुषी, ऋषभ, Moonchild, Mayank. Nice. Keep responding, all of you. Okay, so I'm writing it. It can be son, it can be daughter. All right, it can be son or daughter. Perfect. Now, जो मेरा ब्रदर और सिस्टर हैं, इनके जो सन और डॉटर होंगे, उनको हम बोलेंगे मेरे ब्रदर या सिस्टर। मेरे सिबलिंग्स का सन विल बी माय नेफ्यू एंड उनकी डॉटर विल बी माय नीज। सो नेफ्यू, नेफ्यू होता है मेल एंड नीज होती है फीमेल। नेफ्यू एंड नीज ये कौन है, मेरे सिबलिंग्स के बच्चे, राइट, ठीक है। माई ब्रदर्स चिल्ड्रन, माई सिस्टर्स चिल्ड्रन आर नेफ्यू और नीज। देयर सन विल बी माई नेफ्यू, देयर नीज विल बी माई, सॉरी, देयर डॉटर विल बी माई नीज। ऑलराइट, ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है। अब कुछ रिलेशंस जो मेरे बच्चों की शादी होने के बाद आएंगे, इन लॉज, राइट। सो ए अगर जो भी है, मेल है या फीमेल है, अब यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के सन की वाइफ, ए के सन की वाइफ, मेरे सन की वाइफ
विल बी माई डॉटर इन लॉ। दोबारा बता रहा हूं, मेरे सन की वाइफ विल बी माई डॉटर इन लॉ, मेरी डॉटर का हस्बैंड विल बी माई सन इन लॉ। ओके, सो डॉटर इन लॉ and son-in-law, these are another two relations which will be one generation below, right? ठीक है, so these are 6 things that will be there in the generation below me. एक और जनरेशन नीचे चले जाएंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएंगे। ओके, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। ऑलराइट, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर सिंपल है। मेरे बच्चों का सन विल बी माई ग्रैंडसन, मेरे बच्चों की डॉटर विल बी माई ग्रैंड डॉटर, राइट? ठीक है, सो ऑल दीज रिलेशंस, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, एब्सोल्युटली ऋषभ, वेरी गुड, सो दिस विल बी वन जनरेशन बिलो। सो दीज आर ऑलमोस्ट ऑल द रिलेशंस दैट वी यूज इन द क्वेश्चंस, जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज ट्राई टू मेंटेन दिस फैमिली ट्री प्रॉपर्ली। इतना बड़ा फैमिली ट्री बनाने की ना नॉर्मली जरूरत नहीं होती, तो 4-5 ही रिलेशंस यूज होते हैं, बहुत ज्यादा रिलेशंस यूज भी नहीं होते, एंड क्विकली आंसर आ जाता है। ओके, राइट? सो दीज आर ऑल द बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशंस। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू दैट I have got questions from the previous year papers. So first question on your screen from Jipmat 2024. Now all these are memory based questions, ठीक है, right? So जरूरी नहीं है word to word exactly यही language हो question में, but these are the questions that were asked in the previous year papers. Okay? So for every question I'll be giving you 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes ज़्यादा है. So less than 2 minutes I'll be giving you for every question. And you can post your answer in the chat box as soon as you got the answer. Okay, so question number 1 on your screen. This is a very common type of question that is seen in the examination. Pointing to a photograph, pointing to a person, pointing to whatever. इस type के questions बहुत पूछे जाते हैं, right? So we'll see how to basically handle such things. You may write your answer as A, B, C or D. Okay? Perfect, perfect, nice. 1, 2, 3, 4, 5. 4 of you have given the answer. Ayush, a small request. Do not write the answer again. ठीक है ना? I think आपने हाँ ठीक है grandson and then A लिखा है. It's absolutely fine. But write your answer only once. Perfect. Any other student who want to answer this? There are more than 20 students who are watching me live and only 4 of you could respond. Come on यार, सबका examination है. Solve करो. Answer, write the answer. And even if you are preparing for the next year or the year after that, क्या ही फर्क पड़ता है? काफी चीजें समझाई हैं, बेसिक चीजें हैं. Quickly answer this one. Now pointing to a photograph, a woman says. अब यहाँ पे 2 एलिमेंट होते हैं. Let's say मैं कुछ बोल रहा हूं, right? And मैं किसी की तरफ पॉइंट कर रहा हूं. फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर सकता हूं या मैं पर्सन की तरफ पॉइंट कर सकता हूं. सो 2 एलिमेंट्स हैं, who is pointing एंड वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट? सो हम दोनों डायरेक्शन से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. सो ये जो क्वेश्चन है ये मेरी डायरेक्शन से भी स्टार्ट होगा एंड वो जो पर्सन है जिसकी तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूं वहां से भी स्टार्ट होगा एंड कुछ कॉमन पर्सन आएगा हम दोनों के बीच में. हम वहां पे जाके टकरा जाएंगे, रुक जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वे ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. ठीक है, राइट? अब जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ है, मैं एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहा हूं तो अभी तक मुझे उसका जेंडर नहीं पता कि किसकी फोटो है. उस फोटो में जो पर्सन है उसका जेंडर क्या है, राइट? एंड कौन कह रहा है? अ वुमेन सेज. सो जो भी बोल रहा है उसका जेंडर पता है, फीमेल. ठीक है, नाउ पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ,
अ वुमेन सेज दिस मैन सन्स, अब पता लग गया फोटोग्राफ किसकी है, मेल की, राइट। सो मैं यहां लिख देता हूं, फोटो में कौन है, एक मेल, दिस मैन्स सन। मैं एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं दिस मैन्स सन। अब इस मैन का फोटो मेल है, मेल बॉक्स फीमेल सर्कल, दिस मैन्स सन, सन ये हो जाएगा, ठीक है। सन्स सिस्टर, सन की सिस्टर, ऑलराइट, एस लिखने की जरूरत नहीं है सिस्टर के लिए, सन की सिस्टर, इज माय मदर इन लॉ, वो मेरी मदर इन लॉ है। तो ये जो बंदी है ये इस वुमेन की मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ कौन होती है, मदर इन लॉ इज हु, हस्बैंड की मदर, मेरे हस्बैंड की मदर मेरी मदर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है। सो इस वुमेन की, ये वुमेन हो गई जो बोल रही है, ठीक है, इसके हस्बैंड की मदर ये लेडी, राइट। दोबारा देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माय मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ है, मतलब मेरे हस्बैंड की मदर है, डन, ठीक है। तो ये फोटो हो गई और ये वुमेन हो गई जो बोल रही थी। सो दिस वुमेन इज सेइंग दैट द पर्सन इन द फोटोग्राफ, इस मैन के सन की सिस्टर वो मेरी मदर इन लॉ है। परफेक्ट, डायग्राम तो बन गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड, हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड, मतलब ये पर्सन, हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, मैन इन द फोटोग्राफ, ये बंदा इससे कैसे रिलेटेड है, भाई इसके डॉटर का सन है, इस पर्सन की डॉटर, डॉटर का सन, दैट मीन्स दिस पर्सन is the grandson of the person in the photograph. So grandson, absolutely correct. Everybody has given grandson as the answer. शीतल ने पहले आंसर नहीं दिया था and she has written the answer as well. So सूरज, विशाल, ऋषभ, आयुष, मूनचाइल्ड, शीतल, रिदम, all of you are absolutely correct. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा कम टाइम स्पेंड करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। Quickly, this is Jipmat 2023. Ram and Sham are real brothers. Sita and Geeta are real sisters. Ram's son is Geeta's real brother. How is Sham related to Sita? Yes, quickly. How is Sham related to Sita? All right, Suraj, Mayank, Anupam, Anya, Moonchild. Okay, perfect. Rhythm, Vishal, Akash, Midnight. लवली लवली, ग्रेट। चले सॉल्व करें, हाँ ना। राम एंड श्याम आर रियल ब्रदर्स, ठीक है। सो राम एंड श्याम दोनों रियल ब्रदर्स हैं, परफेक्ट। एंड सीता एंड गीता रियल सिस्टर्स, राइट। सो मैं यहां पे ना एस एच लिख देता हूं श्याम के लिए एंड एस आई आई यूज फॉर सीता, ठीक है। अब सीता एंड गीता रियल सिस्टर्स, अभी इनसे कैसे रिलेटेड है पता नहीं है, तो मैं इस वाली स्टेटमेंट को छोड़ देता हूं। Ram's son is Geeta's real brother. राम का सन गीता का रियल ब्रदर है, ओके। सीता और गीता क्या थी, दोनों सिस्टर्स थी, ओके। सो राम का सन, राम की डॉटर, राम की डॉटर, सो दीज आर द टू डॉटर्स ऑफ राम एंड वन सन ऑफ राम। राम्स सन is the brother, is this Geeta's real brother, okay। फैमिली ट्री बन गया, तैयार है।
हाउ इज श्याम रिलेटेड टू सीता? ना सीता के फादर का ब्रदर, फादर्स ब्रदर इज अंकल, सो श्याम विल बी द अंकल ऑफ सीता, सो श्याम इज अंकल ऑफ सीता, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो प्रीवियस क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? जिपमैट 2024, दिस वाज जिपमैट 2023। समझ में आ रहा होगा एग्जाम का लेवल क्या होता है, ठीक है? हाँ, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। काफी डिफिकल्ट लग रहा है लेवल, व्हाट डू यू थिंक गाइस? जिपमैट 2022, शीला इज वाइफ ऑफ अरुण, दीपक इज ब्रदर ऑफ शीला, गीता and Meeta are children of Sunita. Sunita, who is wife of Deepak. How is Arun related to Meeta? Right, Vishal, Khushi, I totally agree with you. I was just being sarcastic. नवीन दोस्त, आंसर सिर्फ एक बार लिखो, स्पैम मत करो चैट बॉक्स को, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। All right, so all of you like in sync with each other, same answer. Let's check it out. Now Sheila is the wife of Arun. शीला वाइफ है तो अरुण हस्बैंड होगा डेफिनेटली। सो एस से कोई और नाम है, सुनीता है तो एस एच लिख देते हैं। शीला इज द वाइफ ऑफ अरुण। ना हस्बैंड वाइफ के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज करता हूं, डबल डैश, ठीक है? सो शीला इज द वाइफ ऑफ अरुण। दीपक इज द ब्रदर ऑफ शीला, सो दीपक यहां पे आ जाएगा, ब्रदर ऑफ शीला, शीला की तरफ लिख दिया मैंने। Geeta and Meeta are children of Sunita. Sunita, who is the wife of Deepak. Now, Sunita is the wife of Deepak. Okay. And Geeta and Meeta are the children of this lady. Okay. So, Geeta and Meeta. Now, Geeta and Meeta का gender नहीं given है. Okay. Right. So, question is, how is Arun related to Meeta? How is Arun related to Meeta? Okay. Now, answer क्या होगा? How is Arun related to Meeta? Yes, people are saying uncle. So, Meeta के parents, mother and father. Father की sister का husband, मेरे father की sister मेरी aunt हुई और उनका husband मेरा अंकल हुआ, राइट? सो मीता के फादर की सिस्टर का हस्बैंड, मीताज फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड। ओके, सो क्या हुआ? अंकल हुआ। तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, दैट इज अंकल। ऑलराइट, ठीक है? नाउ पीपल, just to make just to introduce some more fun in this question or in this session, let's say instead of this question, अगर question होता, all of you, I'm writing the question here. How is Meeta related to Arun? How is Meeta related to Arun? अगर ये क्वेश्चन होता तो आपका आंसर क्या होता? यू कैन टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज, हाउ इज Meeta related to Arun? What would be your answer? All right, nice. Now, people, I have told you, do not fall into the trap
ट्रैप में नहीं गिरना, ठीक है। अब वही गलती जिस चीज से मैंने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, सबने वही गलती की है एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स, 2 और 3 स्टूडेंट्स। ओके, प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या किया, आपने गीता एंड नीता, ये तो फीमेल्स के नाम होते हैं, आपने अज्यूम कर लिया कि ये दोनों फीमेल्स हैं, राइट। अगर ये दोनों फीमेल है, ये गिवन होता, then Meeta would have been the knees. Your answer would have been absolutely correct. But right now your answer is not correct. Now Meeta अगर मेल है, गीता एंड मीता और स्पेशली मीता इज द सन ऑफ सुनीता, अगर ये सन है, कैन आई से दैट आंसर विल बी नेफ्यू एंड योर आंसर नीज विल बी टोटली रॉन्ग। ओके, सो यहां पे इनका जो आंसर है वो नेफ्यू या नीज, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। सिंस आई कैन नॉट फाइंड आउट इफ इट इज अ नेफ्यू और नीज, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको 4 ऑप्शंस में से, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, सो यू विल हैव टू मार्क कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन दैट केस, ठीक है। सो आई विल गिव यू सर्टेन सिनेरियोज यूजिंग द ऑप्शंस, ठीक है ना। ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, सो लेट्स से इफ यू हैव ऑप्शंस लाइक नेफ्यू, सन, या फिर नेफ्यू हटा देता हूं मैं, नीज डाल देते हैं, नीज, सन, डॉटर एंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ऑप्शन 1 2 3 4, नीज, सन, डॉटर एंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, देन व्हाट आंसर विल यू मार्क फॉर दिस क्वेश्चन? कम ऑन, टेल मी। Absolutely. So you will mark cannot be determined as the answer. ठीक है, right? Even if ऐसी situation हो, let's say daughter की जगह मैं nephew लिख देता हूं, right? daughter की जगह nephew लिख देता हूं, अभी भी आप cannot be determined ही मार्क करोगे, ठीक है। Now कभी कभी क्या होता है, you will be in a situation कि भाई nephew नहीं है, cannot be determined नहीं है, यहां पे uncle लिख देते हैं एंड यहां पे डॉटर लिख देते हैं, ठीक है। सो इन एब्सेंस ऑफ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये वैसे ऑप्शंस गलत हैं, ये एग्जाम की मिस्टेक है, ठीक है। सो समटाइम्स यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, ऐसा होता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस हर बार ही सही हो, कभी ना कभी 2-3 साल में कोई ना कोई मिस्टेक आ ही जाती है। इफ यू हैव दीस काइंड ऑफ ऑप्शंस, इन दैट केस लाइक यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं है, तो आपको फिर ये वाला आंसर मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस केस मार्क ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। ओके सर, इधर नीज और नेफ्यू आया अगर, हाँ, और अच्छा नहीं सूरज, ऐसा नहीं होगा, इधर नीज और नेफ्यू एंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस इलॉजिकली बनाए जाते हैं, सो इधर नीज और नेफ्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये दोनों ऑप्शंस एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बिलीव मी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो अभी तक जिपमैट 24, 23, 22 हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आई फील एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं आई। जिपमैट 2022 में एक और क्वेश्चन आया। So JIPMAT 2022 had 2 questions on blood relations. So in some years we have seen 2 questions, in some years we have seen 1, but at least 1 question तो आया ही है blood relations से। So JIPMAT 2022 on your screen, pointing towards a person in a photograph, Rani said he is the only son of the father of my sister's brother. How is the person in the photograph related to Rani? हाँ, so midnight, ऑप्शन ए इज नेफ्यू, ऑप्शन बी इज नीज, ऑप्शन सी है ईदर नेफ्यू और नीज, तो आप ऑप्शन सी मार्क करोगे, आइदर नेफ्यू और नीज, ठीक है। सो मिडनाइट, सूरज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, राइट। सो कभी कभी आंसर हमें करेक्ट आंसर मार्क करना होता है, ऐसी सिचुएशंस में जो मैंने आपको दिया, तो उसमें हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है।
नवीन, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज अपना आंसर सिर्फ एक बार लिखो दोस्त, बार बार मत लिखो, ठीक है? यू आर स्पैमिंग द चैट बॉक्स। इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट नवीन, एक बार आंसर लिखो, एक बार में मैं देख लेता हूं आंसर सबका। All right. Most of you have said D, but there is one student Rishabh who says C. चल ऋषभ देखते हैं. So let's do this one. Pointing to a photograph, pointing towards a person in photograph, रानी said. रानी कुछ बोल रहा है या रही है. मुझे रानी का जेंडर नहीं पता. Photograph, photograph किसकी है? He is. So photograph is male. Okay. Now he is the only son of the father of my sister's brother. So I'll start from here. Rani's sister and sister's brother. Okay. So Rani बोल रही है he is the only son of the father of my sister's brother. मेरी सिस्टर के ब्रदर का फादर मेरा ही फादर होगा डेफिनेटली. सो रानी के फादर की बात हो रही है एंड ही इज द ओनली सन ऑफ दिस पर्सन. इसका ओनली सन कौन होगा? ये पर्सन होगा. आई विल मार्क विद रेड कलर. ओके, सो ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर्स ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर. ठीक है. सो ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर. ठीक है. नाउ हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रानी? सो इसकी फोटोग्राफ है, ये रानी से कैसे रिलेटेड है? इट्स नॉट कजन, इट्स ब्रदर. ओके, रियल ब्रदर है. ये पर्सन मेल है, रानी का जेंडर कुछ भी हो. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, राइट? सबको समझ में आ गया ब्रदर है आंसर. अब अगर मैं बोलता हूं आप यहां पे रानी का जेंडर बता सकते हैं. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रानी का जेंडर क्या होगा, सो व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ रानी अकॉर्डिंग टू यू एज पर दिस क्वेश्चंस आंसर दैट यू हैव मार्क्ड. रानी का जेंडर क्या होगा? All right, good. So you all are saying कि as per this question the gender of Rani will be female. Why female? Because यहाँ पे only son बोला हुआ है ना. So only son बोला हुआ है तो इस person का एक ही son हो सकता है. रानी cannot be the son, otherwise दो sons हो जाएंगे. Since only son बोला हुआ है तो रानी का जेंडर फीमेल होगा. ठीक है. मैं बोलता हूं नहीं, जरूरी नहीं है, रानी का जेंडर मेल भी हो सकता है. नाउ अगर रानी का जेंडर मेल होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपने यहां पे बोला रानी का जेंडर फीमेल, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रानी का जेंडर मेल होगा. ठीक है. सो रानी सेड, रानी है मेल. द पर्सन इन द फोटोग्राफ ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय मींस रानी's सिस्टर्स ब्रदर. रानी की सिस्टर का ब्रदर रानी खुद है अगर रानी मेल है, राइट? मैं मेल हूं, मेरी सिस्टर का ब्रदर, मेरी सिस्टर एंड सिस्टर का ब्रदर वापस मैं हो सकता हूं. जरूरी थोड़ा कि देयर इज अनदर सिबलिंग ऑफ आवर्स. सो रानी की सिस्टर का ब्रदर यही पर्सन हो गया. ठीक है. इसका फादर एंड फादर्स ओनली सन विल बी रानी इटसेल्फ. ठीक है. सो रानी अपनी ही फोटो की तरफ पॉइंट करके बोल रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रानी हिमसेल्फ. हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रानी हिमसेल्फ. अब इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं था, दैट्स व्हाई वी एक्टेड इन दिस मैनर. ओके, ठीक है, राइट? सो खुशी एंड पार्ट्स, डिड यू अंडरस्टैंड?
So Rani's sister's brother will be रानी itself, रानी खुद है वो, और रानी के फादर का ओनली सन इज रानी itself. रानी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रही थी, तो दैट मींस रानी अपनी ही फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रही है. तो एक ये एलिमेंट भी हो सकता है, राइट? बट इतना दिमाग हम लगाते नहीं है, इतना दिमाग लगाना चाहिए हमें. ओके, चलिए आगे चलते हैं. So in like according to the options which are given, we'll mark the, like I said, more appropriate answer. जो भी सबसे ज्यादा appropriate answer है वो यहाँ पे brother ही है. We'll mark it and we'll move ahead. Okay. Next question, Jipmat 2021. Quickly read the following information and answer the questions given below. Q is the brother of R, P is the sister of Q, T is the sister of S, S is the daughter of R. Who are the niece of Q? सुमित मल्होत्रा, इतने शॉर्ट टाइम में जिपमेंट कैसे क्रैक करें? एक ही तरीका है यार, डेली बेसिस पे 10 to 12 आवर्स मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स इतना स्टडी करना पड़ेगा. जस्ट ज्वाइन आर क्रैश बैच. क्रैश बैच अगर ज्वाइन कर लोगे, बहुत कम टाइम है. क्रैश बैच में क्लासेस अटेंड करो, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जो क्लासेस हो चुकी हैं, उनको देखो एंड उनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं, डीपीपी मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, सबको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा. ओके, सो कोई शॉर्टकट नहीं है. हर पर्सन जो जिपमैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज इट्स IIM बहुत बड़ी चीज है, राइट? सो जनता दुनिया प्रिपेयर कर रही है. दे आर स्टडिंग फॉर मोर देन 8 to 9 आवर्स. मेरे स्टूडेंट्स मुझे पता है जो इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं. आपको उनसे ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा बिकॉज आप लेट स्टार्ट कर रहे हो. विशाल, यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट. ऐप पे भी विजिट कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट विजिट कर लो. ठीक है, एंड यू कैन चेक वट एवर द प्राइसेस ऑफ द क्रैश कोर्स आर. ठीक है, क्विकली, जल्दी ये चीज अभी एक्ट करो. विजिट दी वेबसाइट, IPMAT वाला टाइप करो, फिजिक्स वाला टाइप करो एंड इमीडिएटली एनरोल करो बैचेस के लिए. ओके, सो आंसर आ चुका है. पीपल आर सेइंग S and T. चेक करते हैं. Q is the brother. Q is the brother of R. R का जेंडर अभी नहीं पता. P is the sister of Q. P is sister of Q. T is sister of S. ना तो T का पता है ना ही S का पता है. रुक जाते हैं, ये वाली स्टेटमेंट छोड़ देते हैं अभी. लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं. S is the daughter of R. S is the daughter of R. And T is the sister of S. T is the sister of S. Okay, so S and T are sisters. R is their parent. R का जेंडर तो पता नहीं है. R मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है. एंड ये दोनों इन दोनों के पेरेंट्स के सिबलिंग्स हैं. ठीक है, सो हु आर द नीज ऑफ Q? Q की नीज कौन कौन है? सो Q के सिबलिंग की daughters will be the niece. तो S and T are the niece of Q. So option D is the correct answer. This was Jipmat 2021. Okay, next question. Again another question in Jipmat 2021. Now this is a little calculative question. तो blood relations का typical question नहीं है, but it is something else. One of the students Parks is saying that sir, मास्टर क्वेस्ट पे जिपमैट के मॉक स्टार्ट नहीं हुए. दोस्त, इस चीज के लिए मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि जो आपका डाउट पोर्टल है ना, उस पे ये चीज रेज कर दो. ठीक है, देयर विल बी अ पर्टिकुलर टाइमलाइन व्हेन दीज मॉक्स विल बी स्टार्टिंग. सो पार्शियल ड्रॉप हियर.
हीथ, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर एग्जैक्ट क्वेश्चन, सो एक बार दोबारा से रिपीट करो। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, टिपिकल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। Okay, so Astha says option B, that is 3 is the correct answer. All right, Astha, I take your answer. Anyone else? All right, चलिए देखते हैं, different question है. In a family, each daughter has same number of brothers as she has sisters. हर एक डॉटर, कोई भी एक फीमेल है among the siblings. क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में सिबलिंग्स की बात हो रही है, right? So brothers and sister, so every female has equal number of sisters and brothers. ओके, अब फीमेल है, इसकी सिस्टर्स जितनी हैं उतने ही ब्रदर्स हैं, तो लेट्स से अज्यूम कर लेता हूं कि इसके ब्रदर्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स इज एक्स, सो इसकी नंबर ऑफ सिस्टर्स भी एक्स ही है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो अमंग द सिबलिंग्स कितनी फीमेल्स हो गई? एक्स प्लस वन, सो नंबर ऑफ फीमेल्स among the siblings is x plus 1 and number of males among the siblings will be x. All right, ठीक है, यहां से समझ में आया? हर एक डॉटर, हर एक फीमेल के जितनी सिस्टर है उतने ही ब्रदर हैं, राइट? तो ये आपस में सिस्टर्स हैं। सो हर एक लड़की के जितनी सिस्टर्स हैं उतने ही ब्रदर्स हैं, तो एक्स ब्रदर्स हैं तो एक्स सिस्टर्स हो जाएंगी, तो टोटल फीमेल्स अमंग द सिबलिंग्स विल बी एक्स प्लस वन एंड टोटल मेल्स अमंग द सिबलिंग्स विल बी एक्स, राइट? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट से ये चीज पता लग गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नाउ एवरी सन, मतलब ईच मेल, अब मेल की बात करते हैं। अब मेल्स टोटल एक्स हैं, इनमें से एक मेल को अगर मैंने निकाल दिया तो कितने मेल्स बचेंगे? x माइनस वन, तो हर एक मेल के x माइनस वन ब्रदर्स होंगे और हर एक मेल की सिस्टर्स कितनी होंगी? x प्लस वन सिस्टर्स होंगी, राइट? ठीक है, सो एवरी सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स, ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स। तो अगर मैं इसको डबल कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू x प्लस वन, राइट? सो एवरी सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स। सो जितने ब्रदर्स हैं उसका डबल इज द नंबर ऑफ सिस्टर्स, जितने ब्रदर्स हैं उसका डबल इज द नंबर ऑफ सिस्टर्स। x के लिए सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, राइट? So number of females in the family or among the siblings is x plus 1, that means 4. Number of males कितने हैं? 3. Question में क्या पूछा जा रहा है? How many sons are there in the family? So there are 3 sons in the family. So the correct answer will be 3. So this was not a conventional blood relation questions. थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। Now moving on to Ipmat Rohtak 2020. So question I have picked from Ipmat Rohtak examination 2020. A typical blood relation question. Yes, Heath, ये चीज कर सकते हो, right? I could understand now. आप बोल रहे हो कि if you are like you want to drop after class 12th,
एंड नेक्स्ट ईयर आईपी मैट का एग्जाम देना चाह रहे हो, तो ये जो 1 ईयर है बीच का, एज अ सेफर ऑप्शन, कैन यू परस्यू बीबीए फ्रॉम एनीवेयर? यस, आई वुड से यू मस्ट. Okay, so I could see only 5, 6 of you giving the answer. That's it. Come on, guys, जल्दी करो, बहुत easy question है. Okay, let's go through this one. B is the father of Q. B is father of Q. B has only 2 children, so Q is one child and there will be another child. Q is the brother of R. Q is the brother of R. So R will be the other child of B. B has only 2 children, so Q and R are the children, out of which Q is the son. R का gender अभी तक पता नहीं, ठीक है. R is the daughter of P. So R daughter है किसकी? P की. So that means P will be the other parent of Q and R. So P क्या हो जाएगी? B की wife हो जाएगी, because ये तो already father था ही. So P will be the wife of B and the mother of these two. Okay. A is the granddaughter of P. A granddaughter of P है. अब ग्रैंड डॉटर है तो इसकी डॉटर होगी या इसकी डॉटर होगी, पता नहीं है अभी, तो देखते हैं. S is the father of A. नाउ जो ग्रैंड डॉटर है उसका फादर S है, राइट. अब S अगर फादर है तो S कौन होगा? Q तो मेल है, इसकी तो वाइफ होगी यहां पे, तो S इसका हस्बैंड होगा एंड A इनकी डॉटर होगी, राइट. अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट. So how is S related to Q? How is S related to Q? Now Q की सिस्टर का हस्बैंड क्या होता है? ब्रदर इन लॉ. ओके, सो ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आईपी मैट रोहतक 2020, द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ आईपी मैट रोहतक 2020 on blood relations. So this is on coded relationships. Now A plus B means A is the brother of B. A minus B means A is the sister of B. A multiply B means A is the father of B. Which of the following means that C is the son of M? अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस के थ्रू ही जाना पड़ता है. हर एक ऑप्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड देन we can either eliminate that option or that option will become the answer. Okay, so go ahead, tell me which of the following options will mean C is the son of M.
Parts, you're asking, sir, IPMET Rohtak में sectional time limit है? Yes, Parts. Last year there were 3 sections in IPMET Rohtak. Every section had 40 questions, and you were given 40 minutes for every section, right? So quantitative ability 40 questions 40 minutes, logical reasoning 40 questions 40 minutes, verbal 40 questions 40 minutes. So yes, there is a sectional time limit. सुमित, अभी स्टार्ट करोगे, सिर्फ चैनल पे डिपेंडेंट रहोगे? सी, चैनल में आपको सारे कंसेप्ट, सारे बेसिक्स नहीं मिलेंगे. ऑल्सो ऑन द चैनल आपको सारे टॉपिक्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? सो दीज आर सम एड ऑन क्वेश्चंस दैट वी डू टू हेल्प स्टूडेंट्स, राइट? सो डू नॉट सोनली डिपेंड ऑन द चैनल कंटेंट. Kanishk, any option that has G and M as at the beginning and at the end? Okay, Kanishk, मैं डिस्कस कर लूंगा. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड इसको डिस्कस करने के बाद विल डिस्कस दैट. सूरज, दिस इज नॉट लेस कंटेंट, हम बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है ना? राइट? चलो, सो डिस्कस करते हैं. A plus B means A is brother of B, sister of B, father of B, and ठीक है, 3 coded relations. Which of the following will mean C is the son of N? ठीक है? So M minus N multiply C plus F. treat करते हैं M minus N. M is sister of N. N multiply C. N is father of C, right? Now C is son of M. C is son of M. क्लियरली हम रिजेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को, सन तो नहीं ही है, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड. डन. अब ऑप्शन बी पे चलते हैं. सेकेंड ऑप्शन, F माइनस सी. F इज सिस्टर. F इज सिस्टर ऑफ C. C प्लस N. C इज ब्रदर ऑफ N. N multiply M. N is father of M. Now C is son. C तो ऊपर वाली जनरेशन में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. So first option, second option both eliminated. थर्ड ऑप्शन, अब थर्ड ऑप्शन को मैं कंसिडर क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज लास्ट में देखो F मल्टीप्लाई C. F इज फादर ऑफ C. F C का फादर है. यहां से C का जेंडर तो नहीं पता चलेगा. F इज फादर ऑफ C, तो C सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, तो C का जेंडर नहीं पता चलेगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता. तो C ऑप्शन पे ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ा, एंड 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. ऑप्शन डी आंसर होगा ही होगा. M मल्टीप्लाई N. M इज फादर. M इज फादर ऑफ N. ओके. N minus C. N is sister of C. C plus F. C is brother of F. So C मेल है, M उसका फादर है, C उसका सन है, तो C is the son of M. So that is the correct answer. All right? ठीक है? Perfect. Now Kashish, you are saying there were 2 options. ठीक है, एक बार चेक करेंगे. Right? So people, that's it. अभी यहीं रुकते हैं.
and Kashish is asking one question. So Kashish, 2833 765. Wait. So 2833 765. कशिश ने क्वेश्चन दिया है ए बी डी एंड के वाई वी आर, एक नंबर यहां पे मिसिंग है जी. ओके, सो के 765 जी मैं दोबारा लिख देता हूं एंड आई लीव सम गैप. के 765 जी. So Kashish, I hope you have understood the reason here. So A plus 1 plus 2 plus 3 करेंगे तो G आ जाएगा एंड प्लस 4 करने पे K आ रहा है. सो अल्फाबेटिकली प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यहां पे है एंड यहां पे दिस इज -3 -4 -5 करोगे तो M आ जाएगा एंड -6 करेंगे तो G आ जाएगा. नाउ वी नीड टू लुक एट दीज नंबर्स. एक बार नंबर्स को देखते हैं. सो नंबर्स में एज सच मुझे कुछ लॉजिक क्रैक होता हुआ नहीं दिख रहा है. 2833 765. आशुतोष, मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, वो मैंने यही किया, 134 आ जाएगा. बट 134 के बाद 765 पे पहुंचने के लिए ये लॉजिक नहीं लगेगा, राइट? सो मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3. सो आशुतोष, यही लॉजिक मैंने देखा था, ठीक है. बट ये लॉजिक आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा. 765 वैल्यू नहीं आ रही है. ओके, एंड कनिष्क सेज आंसर इज 148. सो 33 से 148 पे पहुंचने का तरीका यही देखना पड़ेगा. ओके, एंड देन 148 से 765. सो 148 multiply 5, so it is 740. कोई लॉजिक तो नहीं दिख रहा मेरे को. यस उन्नति. सो कनिष्क, आई एम ऑल्सो क्लूलेस, क्योंकि लॉजिकली यहां पे 134 आना चाहिए एंड अगर 134 आ रहा है तो ये वाला नंबर गलत है, 765. ओके, सो मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3. This is the only logic that I could see right now. Else, yeah, I could not see any other logic. One, two, three, four. Nope.
नो सो कनिष्क आई फील दैट देयर माइट बी सम प्रॉब्लम हियर, ठीक है ना? ओके तो एक बार क्वेश्चन पेपर दोबारा चेक करो, शायद क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है. ओके ऑल राइट सो पीपल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं एंड I think people already have given me a topic, data sufficiency. And would you like to request for any topic that you want me to cover over the next class? Come on. So you can write it in the chat box. Anything you believe that it is weak. So come on. Yes, अगर कोई जनरल क्वेरी है तो वो भी आप लिख सकते हो. Right now, I can take it in the next 2-3 minutes. So people are saying arrangements, DI, dice, bar lines, okay. Just write your topic, ठीक है? जो भी टॉपिक आप चाहते हो, जो भी वीक है, and then will decide which one will I be taking. जिसके भी ज्यादा कंटेंटर्स होंगे, I'll be taking that topic. Rishabh, you can post your journal query if you want. सर जिपमेट में डीआई की परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दैट ओनली इन मॉक्स. यस सो उन्नति, जिपमैट में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 या 3 सेट डेफिनेटली मिल जाएंगे एंड जनरली दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन परसेंटेज कैलकुलेशंस, सो योर परसेंटेजेस विल हैव टू बी स्ट्रांग. ओके यस आशुतोष, ये पॉसिबल हो सकता है. Yes, so Ashutosh, nice. If I would have spent some time, हो जाना चाहिए था ये. ठीक है, चेक करते हैं जो आपने लॉजिक दिया है. 2 multiply 2 plus 2 square. Okay, so 2 multiply 2 plus 4. Then 8 आ जाएगा ये. 8 multiply 3 plus 9, that is 33. 33 multiply 4 plus 16. So that is 148, absolutely 148 multiply 5 plus 25. So that's it. So, uh, so whose question it was? Ashutosh, nice, good. Okay, so this is the correct answer. Analogy classifications are charts and graphs relevant for Jipmat. Yes, Rishi, they are. So I'm kind of having problem in series and cubes and dice. Can you bring next lecture on that? Series and cubes and dice. Okay, Unnati. Chaliye. So I have got some of the topics from all of you. I'll try to incorporate as many as possible. All right. So friends, that's all from my side. Thank you for today and I'll see you in the next week. Bye-bye.